Good morning, children. As we are discussing the topic nationalism in 19th century in Europe, I hope you all understood all the points. So before starting the next topic, let's briefly revise the previous lecture in points, what we have discussed in the previous lecture. So the first topic we have discussed that structure of European society means यूरोपियन के समाज की संरचना यानी what type of society the European had in the 19th century. Then second topic we have done how nationalism and idea of nation state emerged यानी किस तरीके से राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार उभरा यानी मीन्स राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार कैसे आया. Now the third point we have discussed what is liberalism, how it emerged as liberal nationalism यानी मीन्स उदारवाद क्या है, यह उदारवाद राष्ट्रवाद कैसे बना यानी राष्ट्रवाद ये उदारवाद राष्ट्रवाद में कैसे बना और ये किस तरीके से यूरोपियन समाज में उभरा. Now the fourth point we have discussed who brought liberal nationalism यानी यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद किसने लाया, किसके द्वारा उदारवाद राष्ट्रवाद जो है यूरोप में आया. Now fifth point we have discussed concept of liberal nationalism यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा यूरोपियन समाज में यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल रैशनलिज्म इन यूरोपियन सोसाइटी. वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोपियन सोसाइटी इमर्ज्ड इन यूरोप इन 19th century. Now the last point we have discussed about that कि liberal nationalism can be put in two category. One category is political sphere and second one is economic sphere which we will discuss in this lecture. And we have already discussed the political sphere यानी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उदारवादी राष्ट्रवाद को हम दो वर्गों में रख सकते हैं और वो दो वर्ग ये था कि राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक पक्ष जिसको हम पढ़ चुके हैं. अब इस लेक्चर में हम अगला पक्ष पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे है वो है आर्थिक क्षेत्र. So these are the points which we have discussed in previous lecture. Now children, today we will study about the topic economic sphere यानी liberal nationalism in economic field और sphere यानी आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की कैसे लागू होता है आर्थिक क्षेत्र में in the European society in the 19th century. So we are going to study this point today in order to understood the liberal nationalism in economic field in European society. So the first the first point in the economic sphere is in economic sphere, liberal nationalism stood for what? Freedom of market. Means बाजार स्वतंत्र हो यानी the first point is that कि what liberal nationalism stood for in economic sphere. The first point is freedom of market यानी बाजार स्वतंत्र हो या बाजार की स्वतंत्रता. बाजार की स्वतंत्रता का मतलब क्या इट मीन्स कि ये किस तरीके से स्वतंत्रता हो. इट मीन्स दैट कि बाजार की मुक्ति यानी किसी तरह का भी बाजार पर रोक टोक ना हो यानी फ्री फ्रॉम ऑल द बैरियर्स ऑफ एक्स्ट्रा टैक्सेस और टैरिफ्स. टैरिफ्स आप समझ रहे हैं, टैरिफ्स आई टोल्ड यू अर्लियर कि टैरिफ मीन्स टैरिफ्स होते हैं वो कर यानी टैक्सेस. इसको हम टैक्सेस कह सकते हैं जो कि ऑन गुड्स पर प्लस ट्रांसपोर्ट पर लगाया जाता था.
ट्रांसपोर्ट पे ये कर लगाया जाता था, यानी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट वॉज टैरिफ्स, यानी वो ये कर होता था. सो द फ्रीडम ऑफ मार्केट मीन्स कि इट मीन्स दैट कि द मार्केट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द टैरिफ्स, शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द बैरियर्स in order to move from one region to another region. यानी बाज़ार की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मार्केट यानी ये बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से फ्री हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उस पर कोई कर ना लगा हो, कोई भी किसी तरह की रुकावट ना हो, ताकि वो एक प्रोमाइस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से वो जा सके, उनका आवागमन हो सके. नाउ एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट कि इट ऑल्सो मीन्स abolition of it means that कि abolition second point हम we can write that कि abolition of state imposed restrictions on movement of goods from one place to another place. Now you can say also define the freedom of market in another sense, that the abolition of state imposed restriction on goods. It means कि there should not be any restriction on the movement of goods from one place to another. यानी पूंजी के आवागमन पर राज्यों द्वारा लगाए गए नियंत्रण जो है वो ख़त्म होने चाहिए, यानी समाप्त होने चाहिए. यानी जो गुड्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रुकावट, यानी कि बिना किसी रुकावट के वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा सके, उनको कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ या एक्स्ट्रा कर ना देना पड़े, या कोई भी उनको कोई भी बैरियर का सामना ना करना पड़े. That is the point, freedom of market. And the third point we can put strong demand of the emerging middle class. Now the third point is that strong demand of the emerging middle class means कि इसका मतलब ये हुआ कि मध्य वर्ग की जोरदार 19वीं शताब्दी में, यानी मध्य वर्ग की जोरदार मांग. Now let's discuss about this point कि what is the strong demand of the emerging middle class and why the point is called strong demand of the emerging middle class. We have discussed that in European society with the advent of industrialization, a new middle class, madhya varg, yani middle class, emerged. Now during the 19th century there was a strong demand of emerging middle class. We can take the example of German speaking region in the first half of the 19th century. मतलब ये कहने का है कि हम कह सकते हैं कि पूरी 19वीं शताब्दी में उभरते हुए मध्य वर्ग की एक ज़ोरदार मांग थी. हम जर्मन भाषा इलाकों की उदाहरण ले सकते हैं. अब वहाँ किस तरह का काम हो रहा था, जर्मन भाषा का उदाहरण हमने क्यों लिया? बिकॉज व्हेन नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव हैड क्रिएटेड आउट अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि व्हाट इज़ द कन्फेडरेशन. जैसा कि हमने आपको बताया था कि कन्फेडरेशन का मतलब क्या है. कन्फेडरेशन का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन of small states. यानी कह सकते हैं कि छोटे राज्यों का महासंघ. Now
what happened here? When Napoleon administrative created out a confederation of 39 state, यानी जब नेपोलियन प्रशासनिक कदमों ने जब उन्होंने जर्मन एक 39 स्टेट का एक महासंघ जब बनाया, तब क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो 39 का जो महासंघ था जब इन्होंने बनाया जर्मन स्टेट में, नेपोलियन हैड क्रिएटेड, तब इसके अंतर्गत क्या हुआ? व्हेन नेपोलियन हैड क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल स्टेट, यानी कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, छोटे राज्यों का महासंघ था, जो 39 छोटे राज्यों का ये महासंघ था, विच वॉज क्रिएटेड बाय द नेपोलियन. नाउ व्हाट दिस कन्फेडरेशन वॉज डूइंग, ये कन्फेडरेशन क्या कर रहा था, इसका क्या काम था? Now the main thing was that कि in this a merchant would have to pass, यानी किसी व्यापारी को, मर्चेंट को, यानी merchant have to pass 11 barriers, through 11 barriers plus duties. Now what this confederation was doing? In this, a merchant would have had to pass through 11 custom barriers, and duties were often imposed according to the weight or measurement of the goods. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो व्यापारी होते थे उन्हें 11, यानी जो व्यापारी होते थे उन्हें 11 नाकों, बैरियर्स मीन्स होता है नाकों, यानी आप नाकों और से गुजरना पड़ता था, और उनको गुजरना पड़ता था. और दूसरी बात ये होती थी कि उनको जो थे उनको ड्यूटीज़ जो थी, यानी जो कर होते थे, वो सामान पर, गुड्स पर देना पड़ता था. और दे हैव टू गिव, मतलब चूँकि इसमें ये पता, चूँकि इसमें से, क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली होती थी, तो वे चीज़ों पर वज़न और आकार के अनुसार शुल्क लगाते थे. यानी अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स दे इम्पोज्ड टैरिफ्स, दे इम्पोज्ड ड्यूटीज ऑन दोज गुड्स. So such conditions were considered as obstacles. किसके लिए ऑब्स्टिकल? इस तरह की कंडीशन जो थी, ये जो कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कंडीशन, ये जो परिस्थितियाँ थीं, these conditions were considered as obstacles. As obstacles for what? For economic exchange and growth. So children, such conditions were considered as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory. यानी जो कमर्शियल क्लासेस थे उन्होंने क्या किया, कमर्शियल क्लासेस जो हैं उन्होंने क्या किया कि दे डिमांडेड, व्हाट डिमांडेड, द यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी. Now this commercial classes जो ये who argued for the creation of unified economic territory for what? To allow the movement of goods, movement of goods plus people plus capital from one region to another region without any hindrance. मतलब ये कि नए जो ये वाणिज्य वर्ग थे, ये जो कमर्शियल क्लासेस थे, ऐसी परिस्थितियों को वो आर्थिक विनिमय यानी इकोनॉमिक एक्सचेंज और विकास यानी डेवलपमेंट में क्या मान रहे थे, बाधक मान रहे थे, यानी ऑब्स्टिकल मान रहे थे, और आर्थिक क्षेत्र की निर्माण की बात करने लगे.
ताकि वस्तुएं जो चीज़ें होती चीज़ थी, लोग थे, पूंजी थी, यानी धन का जो आवागमन था, यानी आना जाना था एक जगह से दूसरी जगह, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट से हो जाए। समझ में आया बच्चों? नाउ अंडरस्टूड कि ये एक ऐसी इन्होंने एक ऐसी रास्ता इन्होंने निकाला कि there should be a unified economic territory, and they should know, so that they could allow the movement of goods, people, capital from one place to another place without any hindrance। ऐसी परिस्थितियों में जो है कि उन्होंने ये सोचा कि हम लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो आर्थिक विनिमय, एक्सचेंज में, उनके विकास में बाधक बन रही हैं, तो इसकी इन्होंने आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की बात करने लगी, ताकि वो वस्तुओं, लोग और जो है पूंजी का आवागमन बिना किसी हिंड्रेंस के वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। सो दिस इज द पॉइंट। एंड नाउ देयरफॉर, अब क्या होने वाला था? देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक दीज थिंग्स मोर सक्सेसफुल, in 1834, what happened in 1834? A custom union of Zollverein, हम कह सकते हैं कि Zollverein formed now to stop all these problems in economic sphere. In 1834 a Zollverein formed, yani Zollverein was formed. And about what is Zollverein, what this term means. Now Zollverein in 1834 a custom union or Zollverein, you can say that ki Zollverein is a custom union. इसका मतलब है कि 1834 में अ कस्टम यूनियन ऑफ Zollverein was formed at the initiative of Prussia, and joined by the most of the German states. यानी ये कस्टम यूनियन was joined by many German states. नाउ इसका मतलब ये है कि इसी वजह से, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो आर्थिक क्षेत्र में अब उभर रहे थे, इसी कारणवश 1834 में प्रशा, यानी प्रूशिया को हम हिंदी में प्रशा कहते हैं, प्रूशिया जो देश की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया, यानी Zollverein इज अ शुल्क संघ, इसको शुल्क संघ कहते हैं। ये एक ऐसा शुल्क संघ था जिसको हम Zollverein कहते हैं, नाम से जानते हैं। उसको स्थापित किया गया, उसे बनाया गया, जिससे जिसमें कई जर्मन राज्य भी शामिल हुए। यानी इस शुल्क संघ में बहुत सारे जर्मन देश भी शामिल हो गए, टू स्टॉप द प्रॉब्लम या टू मेक द प्रॉब्लम टू एन एंड ऑफ इन इकोनॉमिक स्फेयर एज वेल एज इन पॉलिटिकल स्फेयर ऑल्सो। नाउ अब जो था कि अब ये Zollverein was formed, अब Zollverein का तो फॉर्मेशन हो गया, और ये एक कस्टम यूनियन है, एक शुल्क संघ है जो कि 1834 में बना, और इसके साथ बहुत सारे जर्मन स्टेट्स भी जॉइंड हो गए, यानी इसके साथ हो गए। अब पॉइंट बनता है कि व्हाट वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हाट Zollverein डिड। Zollverein के अकॉर्डिंग या Zollverein के क्या अचीवमेंट्स थे, यानी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उसका, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन यानी क्या योगदान था उसका, क्या योगदान था इकोनॉमिक स्फेयर में Zollverein का क्या योगदान था। अगर हम योगदान की बात कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट इस संघ का योगदान ये था कि it abolished tariffs। इसने क्या किया था? इसने टैरिफ को अबॉलिश किया, बैरियर्स को रिड्यूस किया। दिस यूनियन abolished टैरिफ। फिर उसने क्या किया? रिड्यूस द नंबर ऑफ, यानी क्या नंबर रखा है? करेंसी की रिड्यूस करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to
मतलब कहने का है कि द यूनियन एबॉलिश द टैरिफ्स, रिड्यूस द tariffs and barriers, and it reduced the number of currencies from over 30 to 2. मतलब ये है कि इस संघ ने क्या किया, शुल्क अवरोधक यानी ये जो शुल्क थे, शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और करेंसीज यानी मुद्राओं को घटाकर, मुद्राओं की संख्या को घटाकर यानी 30 से 2 कर दिया, 30 से 2 कर दिया. So it abolished the tariffs, barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2, यानी मुद्राओं को घटाकर इसने 30 से 2 कर दिया. ये this is your the first point, and the second point is that increased railway network. Means it increased railway network, यानी इसने क्या किया, रेल नेटवर्क जाल को बढ़ाया, रेल नेटवर्क जाल को इसने बढ़ाया. दिस यूनियन इंक्रीज रेलवे नेटवर्क, इस महासंघ ने रेल नेटवर्क जाल को भी बढ़ाया और एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू मेक या टू फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन. और इसने क्या किया, मतलब इसने रेलवे के जाल को बढ़ाया और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक भी बनाया. यानी इसने क्या किया, इसने ऑल्सो क्या इंक्रीज किया, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस लिए, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. मीन्स कि इसने आर्थिक हितों को, यानी इसने क्या किया, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बनाया. मीन्स दिस यूनियन इंक्रीज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, यानी आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इसने बनाया. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम. मीन्स कि इस तरह पूरी आर्थिक जो राष्ट्रवाद की लहर ने एक राष्ट्रवादी भावना को और मजबूत बना दिया. कहाँ मजबूत बना दिया, पूरे यूरोप में. इसने क्या किया, इसने जो था वो स्ट्रेंथेंड, यानी दीज टाइप ऑफ मेजर स्ट्रेंथेंड व्हाट, nationalist sentiments. इसने क्या किया कि इट स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम. यानी ये आर्थिक राष्ट्रवाद लहर ने पूरे राष्ट्रवादी भावना को और मजबूत बना दिया. Now, so in this way, a liberal nationalism found its potent or stable place in the European arena. यानी हम कह सकते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद ने संपूर्ण पूरे यूरोप में अपनी मजबूत और स्थिर जगह बना ली. और इस तरह से
the making or the formation of nationalism started and growing with every step. यानी इस तरीके से जो है पूरे संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद यानी उदारवाद या राष्ट्रवाद का निर्माण जो है वो शुरू हो चुका था या हो रहा था। और अब जो आप है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप was going to found its firm root in Europe in the 19th century. So we will stop here, children, and next topic we will discuss another topic in the nationalism in 19th century in Europe. I hope you will like my video, and take care of yourself and your family, and goodbye. Thank you.